with different prayers, with different requests that they have in their mind, O Lord. We know that you hear everything. Even if we don't say through our mouth, you hear what is there in our heart, O Lord. And we know that you are going to do wonder things today, O Lord. Amen. We submit each one of us who are present here. We submit the anointed people who are here, who will be sharing through your words, O Lord. Hallelujah. We submit the worship team in your hands again. And all the people who are gathered and those who are on the way to join us today. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Good morning. A little louder, good morning. Yes, it is a joy to be in the house of the Lord. And, we have a blessed time and we are all expectant. We are hungry, as we saw in the lyrics here. We are hungry for God. We are hungry for the Word. And one thing that I want to exchange here is that there is a key that I want to exchange. Right? But before I exchange that key to you, I would encourage each one of us to know where we are. First, the question is, where are we today? The Word of God says, when 2 or 3 are gathered in His name, He is present. It is not a club botanica. It is not concept ambience. It is that the saints of God, the children of God, are gathered here. And because we are gathered here, the presence of the Lord is here. And therefore, we should know that we are in the presence of God. And with that hunger, the key that I would like to exchange with you is this: that a heart of gratitude, a heart of thankfulness will open the doors of blessings for each one of you. Praise the Lord. Do we have enough things to thank God for? Last week I was seeing my aunt, my mother's elder sister, suffer so much. We thought, because doctors had given 24 hours to 48 hours in KIMS in Kottayam. And we saw her in the video, and she was taking deep gasps of breath. And we were just waiting that, she might go anytime. And when I see the oxygen cylinders are all plugged in, right, it made me feel very sad inside. But to our surprise, we have a maid called Sindhu who was standing next to her in the ICU room. She was the only person there. And she started praying to God. And when she said Amen, Auntie, surprisingly, till that moment, 4 days she was not speaking. She said Amen along with her. And then she woke up and she plucked out her nose, the oxygen that was going through her nose. She is in that last phase of life, but she has some desires of her heart that God will fulfill till she has her last day. We know that the last day is coming, it's not far. But she has some desires, some unfinished work where God's purpose is going to be fulfilled, and then she will be called into the Lord. Right? But we have enough and more to thank God. We breathe, we walk, we are healthy, we see. We are in the presence of God, and we have enough and more things to thank God for. Praise the Lord. So when you are in the presence of God with an attitude of praise, with a gratitude, with an attitude of thankfulness, God will unlock this day for you. Praise the Lord. God will unlock the blessings from heaven upon you, and you will go back a different person. You will go back lighter. You will go back more happier. You will go back with a sense of purpose. In the name of Jesus, may all this happen this morning. Praise the Lord. We depend on God for that. And today, we have a line of speakers and worship leaders with us. We are so blessed. We have very humble beginnings, very small congregation here. But today we have amongst us Pastor Wilson George. We thank you for taking this time, and Sister Sheila George, both for coming all the way. And the relationship is like this. They are my father-in-law's younger brother and sister-in-law. And another guest with us this morning is Shalom Jacob. Where is Shalom? Shalom is behind. So he has come all the way from UK, and he's also a worship leader.
and he leads in Pastor Joe Kurian's church once in a month, and then he has other church where he leads worship, and they are all anointed servants of God. And we have our own brother Elisha Lawrence also. He has been powerfully sharing the word. So we have an array of speakers, and we will have a great time together. Only thing that we need to do from our side, it is not that we are only going to receive, but when you give praises to Him, when you are in an attitude of thankfulness, God will unlock the keys and the doors of blessings upon each one of you. As Jubin was praying, that Lord, there are many needs that are unspoken, that you cannot speak to others, that you cannot tell others, but you know your need. And that is where the church comes in to play, the body of Christ comes into play, and the Holy Spirit will minister to each one of you through these servants of God. So with an attitude of gratitude, I take this opportunity to welcome Pastor Wilson George. He started his ministry, formal ministry in 1978, but during his college days also he was ministering during his studies also. And God has used him powerfully across the world. In India, I think I was talking to him just now, minus 1 or 2 states, he has traveled all the states sharing the gospel. And I have seen personally that they were always on the move. They're in one convention to the other convention, they have been moving. And the best part that I like is, from my childhood in 1980s, as much as I can remember, from class 2 onwards, as much as I can remember, I have been singing his songs, like Sion Desh, Hamara Hai Desh, Sare Srishti Ke Malik Tumhi Ho, and all those things, never knowing that it was Pastor Wilson George who wrote these songs, right? But God has His design, and then Shiny came into my life, that's how I got connected to them. So God has His plan and purpose, and have united all of us together for His glory. And I am praying, and I continue to pray as I invite Pastor Wilson onto the stage to share this time with all of you. Hallelujah. Praise the Lord. मैंने कहा praise the Lord. कितने लोग को हिंदी आती है? सबको आती है. जिनको ज्यादा नहीं आती वो सबको आती है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मौके के लिए जो परमेश्वर ने अपनी योजना बोलने से अभी वर्तमान में नहीं बनी, सृष्टि के प्रारंभ से परमेश्वर की योजना हम प्रत्येक के लिए, प्रत्येक बातों के लिए उसने बनाई. और ये दिन जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, इसको परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से देखा हुआ है. मेरी हिंदी समझ में आ रही ना कि मैं ब्रदर को बुलाऊं ट्रांसलेशन के लिए? तो वही परमेश्वर जिसने इस बात को सृष्टि के प्रारंभ से देखा, वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है. हालेलुया. मैं यहाँ पर मुझे नहीं मालूम, जॉन ऑस्टिन की मीटिंग को याद करते हैं कोई? जॉन ऑस्टिन जिम खाना मैदान में बहुत बड़ा, उसमें रक्तम जयम गाने वाला आई वॉज इन्वाइटेड टू लीड द वर्शिप इन हिंदी. सो रक्तम जयम इतना पॉपुलर हो गया था क्राउड में कि लोग प्रेज द लॉर्ड की जगह रक्तम जयम हाथ मिलाते हुए कहते थे. तो वो मेरा हैदराबाद या सिकंदराबाद में आना पहला था, कई साल पहले की बात. उसके बाद मैं बीच में आता रहा. मैं ब्रदर सैमुअल वर्गीस, शाइनी का, मेरे अपने बड़े भाई ब्रदर सीवी मैथ्यू, भाभी का, इन सब का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने सेवा के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया और इस मीटिंग का आयोजन किया है. हम सब परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे बीच में अपने वायदे के मुताबिक
हाजिर है, वो सारी हमारे सारे धन्यवाद, सारी स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है, वो सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। अपने हाथ के बित्ते से आकाश को नापने वाला, अपने चुल्लू में, इसको चुल्लू बोलते हैं, उसमें महासागर को लेने वाला, सारी पृथ्वी के पहाड़ और पहाड़ियों और सारी पृथ्वी की मिट्टी को तराजू में तौलने वाला परमेश्वर अपने उस सामर्थी हाथ से हमें छुड़ाने का और हमारी देखभाल करने का उसने जो वादा किया है, वो सामर्थी हाथ काम करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक भाव को पढ़ते हुए ये गीत को मैं प्रारंभ करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय का 8 से 10 तक का वचन मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में। आप अपनी अपनी बाइबल खोलें और देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 8 से 10। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। बोलिए, यह सुनकर, थोड़ा जोर से बोलिए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। आप चाहते इंग्लिश में ही पढ़ लें ताकि कोई कमी ना रह जाए। When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. तो विश्वास ऐसा भी होता है, हम सब बोलते हैं हम विश्वासी हैं। अभी आप बोला कौन? मैं विश्वासी हूं। एक जन को विश्वास है कि पानी गिरेगा, दूसरे को विश्वास है पानी नहीं गिरेगा। तो विश्वास ऐसा भी होता है। तो विश्वास का जो स्तर है वो इतना ज्यादा भी हो सकता है कि यीशु अचंभित हो जाए। यीशु जो काम करता है उससे तो हम अचंभित होते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसा काम है जिससे यीशु अचंभित हो जाए। वो आपका विश्वास। यदि यीशु आपसे, आपके विश्वास से अचंभित हो जाए तो ऐसा करेगा कि आप भी अचंभित हो जाएंगे। अगर आपको अचंभित होना है यीशु मसीह से, तो अपने विश्वास से उसे ये सूबेदार ने ऐसा विश्वास किया, उसके विश्वास को यीशु मसीह ने देखा और जाना। हमारे मुंह से निकलने वाले बोल हमारी सोच का परिणाम होते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर है, उसका आउटकम है ये हमारे बोल। तो जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले को पता लग जाता है कि हमारे अंदर है क्या। तो सूबेदार ने जैसी बोला तो यीशु मसीह ने सुनकर वो इतना अचंभित हो गए। ऐसा विश्वास,
ऐसा विश्वास तो मैंने इजरायली लोगों में नहीं देखा, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े काम को अपने जीवन में देखा। उनके बाप दादे ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उनका विश्वास का स्तर इससे ज्यादा होना था सुबेदार से। लेकिन सुबेदार जो इन सारी बातों को जो इस्राएल में घटा, उस सब को सुन के ये जाना कि ये सच्चा परमेश्वर है जिससे कुछ भी असंभव नहीं है। उसको मेरे घर आकर उतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, यहीं से एक शब्द बोलेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। जिसने एक शब्द बोला और सारी सृष्टि अस्तित्व में आई। बेटा और एकदम बदसूरत सी थी ये पृथ्वी, लेकिन जब मेरी बात समझ नहीं रहे तो हाथ उठा देना, नहीं तो फिर मैं चाहता हूं कि आप लोग समझिए। तो परमेश्वर ने बोला हो जा, वचन बोला और क्या हो गया? हो गया। अभी जो ये सुंदर अपन देख रहे हैं ना सृष्टि और पृथ्वी, ये ऐसी सुंदर नहीं थी। जब सुबेदार को मालूम है कि जो सारी बदसूरत है बेडौल पृथ्वी को, सृष्टि को इतने खूबसूरत अवस्था में ला सकता है, वो खड़े खड़े एक वचन बोलेगा तो मेरा सेवक यूं चंगा हो जाएगा। आपकी परिस्थिति कितनी भी बेडौल हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, पारिवारिक रिलेशंस में हो, या व्यक्तिगत कोई परेशानी हो, एकदम देखने लायक नहीं और महसूस करने लायक नहीं, अनुभव करने बहुत ही खराब, एक वचन यदि बोलेगा ना प्रभु तो यूं ठीक हो जाएगा। और ऐसा ठीक नहीं होगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। जितना बदसूरत है ना उसका उल्टा उससे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। वो परमेश्वर सृजनहार यहां खड़ा हुआ है। यही मैं अपने एक प्रतिकूल परिस्थिति में जब प्रार्थना कर रहा था तो ये गीत प्रभु ने दिया, और मैंने भी विश्वास किया प्रभु तेरा एक वचन मेरी इस परिस्थिति को यूं बदल सकता है। जितना ये मुझे कठिन लग रहा है, जितना दर्दनाक लग रहा है, उतना आनंददायक हो जाएगा तेरे एक वचन के द्वारा। इस सुबेदार ने विश्वास किया, घर जाके देखा सेवक चंगा हो गया। वही यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो कल आज और युगानुयुग एक सा, आज भी वो वैसे ही है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को शब्द समझ में आएंगे, और मेरे साथ ये गीत गाना। तेरा बोलिए, तेरा एक वचन कठिन है क्या? बोलिए, तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। दो बोलने की जरूरत नहीं, एक से ही हो जाएगा। तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। यीशु एक वचन है काफी, मेरे हाल सुधर जाएंगे। तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। यीशु एक वचन है काफी, मेरे हाल सुधर जाएंगे। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, सृष्टि को रचने वाला वचन, सामर्थ्य अटल यीशु तेरा वचन, तेरा एक वचन, एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन,
बेगान थी सारी पृथ्वी, तेरे वचन से निकली। बेगान थी सारी पृथ्वी, तेरे वचन से निकली। तूने कहा और हो गया, तूने कहा और हो गया। तू कहेगा भी और हो जाएगा। प्रभु धन्य ये जीवन हो जाएगा। यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, सृष्टि को रचने वाला वचन। सामर्थ्य अटल यीशु तेरा वचन, तेरा एक वचन। बोलिए यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। आगे बढ़ो। बीमार हुए सब चंगे, यीशु तेरे एक वचन से। बीमार हुए सब चंगे, यीशु तेरे एक वचन से। तेरे वचन की शक्ति से, तेरे वचन की शक्ति से चंगाई मुझे भी मिल जाएगी। मुरादें पूरी हो जाएगी। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, सृष्टि को रचने वाला वचन। सामर्थ्य अटल यीशु तेरा वचन, तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, एक वचन, सिर्फ एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। मेरी दुआ को सुन ले, अपनी दया बरसा दे। मेरी दुआ को सुन ले, अपनी दया बरसा दे। तुझ पर भरोसा है मेरा, तुझ पर भरोसा है मेरा। तेरे वादे सच्चे हैं खुदा, जो पूरे होते हैं सदा। एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, सृष्टि को रचने वाला वचन। सामर्थ्य अटल यीशु तेरा वचन, तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। यीशु एक वचन है काफी, मेरे हाल सुधर जाएंगे। उसका एक वचन आपकी हालात को, आपके हालात को, आपके हाल को बदल देगा। अगर सूबेदार का सेवक
सूबेदार के विश्वास से ठीक हो सकता है, तो आपका विश्वास आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपकी परिस्थिति को, आपकी नौकरी के स्थान में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हालेलुया। ये गीत दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को। हमारे मन में धन्यवाद कब होता है मालूम? जब हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूल जाते। दाऊद राजा होते हुए कहता है, हे मेरे मन, इतने बड़े पद पर परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया है, इतनी बड़ी जय उसने हासिल की, इन सब के बावजूद वो कहता, वो कई प्रकार के प्रतिकूल से प्रतिकूलतम परिस्थिति में अनुकूल से अनुकूलतम परिस्थिति से होके गया, लेकिन वो कहता, मैं चाहे बुरा से बुरा हो जाए, चाहे अच्छा से भी अच्छा हो जाए, तो भी मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से। हमारे मुंह से परमेश्वर कई प्रकार की शिकायतें सुनता है, कभी गुस्से में गालियां सुनता है, लेकिन दाऊद कहता है कि जहां अन्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी विश्वास योग्यता को, उसके प्रेम को, उसके उपायों को, उसकी युक्तियों को वो कुड़कुड़ा सकते हैं, वो गालियां दे सकते हैं, वो परमेश्वर के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जब परमेश्वर को जानता हूं, मैं हर समय चाहे कितने भी बुरे दौर से गुजरूं, चाहे कितने भी अच्छे दौर से गुजरूं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति। परमेश्वर मुझे मेरे परमेश्वर बोल कान लगाता है। एक मिनट, जब इजरायली लोग को परमेश्वर ले जा रहा था, तो कुड़कुड़ाने वालों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? जो कुछ मैंने जो कुछ उन्होंने बोला और मैंने अपने कानों से सुना है, उसी के अनुसार मैं करूं। ऐसा है, मेरे सुनते उन्होंने जो भी कहा, हेलो बोलिए, मेरे सुनते, जोर से बोलिए। इसका मतलब आप जो भी बोलते हैं प्रभु सुनता है, चाहे बुरा हो वो भी सुनेगा, अच्छा। जब विश्वास बोलोगे तो विश्वास को भी सुनता है, अविश्वास बोलेंगे तो अविश्वास को भी सुनता है, अविश्वास बोलेंगे तो अविश्वास के अनुसार करेगा। मतलब विश्वास नहीं होगा तो विश्वास नहीं, उसी के अनुसार करेगा। और विश्वास है तो ये सूबेदार जैसे विश्वास बताया वैसे ही करेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए धन्यवादी मन से एक गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु के। मांगने से
ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि स्तुति करना। तन मन और धन अर्पण तुझे कर कबूल खुदावंदी में। तन मन और धन अर्पण तुझे कर कबूल खुदावंदी में। तेरी मर्जी पूरी करो सदा, ऐसा फजल मुझे दे। तेरी मर्जी पूरी करो सदा, ऐसा फजल मुझे दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपकी जो योग्यता है उससे बढ़कर प्रभु ने दिया। आपने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। यदि ऐसा है तो धन्यवाद निकलने दीजिए, धन्यवाद निकलने दीजिए। हालेलुया। मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। यदि हम राजा को कुछ देते हैं अपनी ताकत से, हम अपनी ताकत समझ जितनी मैक्सिमम आप सोच लीजिए कि मैं राजा को ये दे सकता हूं, ये भेंट, तो आपने अपनी ताकत से दी और फिर राजा अपनी ताकत से देगा तो क्या होगा? आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो आप अपनी ताकत से दीजिए, फिर देखिए वो अपनी ताकत से कैसे देता है। लेकिन अपनी ताकत कम मत करना। जितना परमेश्वर को मालूम है कितनी ताकत दी है, तो जब देखा ये पूरी ताकत से दे रहा है तो मुझे भी अपनी ताकत से देना पड़ेगा। मजबूरी है, परमेश्वर की मजबूरी है, मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि इसने पूरी ताकत से दी है। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यदि आप लोग अपने मन से, मेरे कहने से नहीं, खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, लेकिन बैठे भी रहे तो मन से खड़े रहे। हालेलुया। ये एक लाइन में ई पकड़े, यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी, बोलिए जोर से, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा यीरे दातावा देवा, नी मात्रम अधीनिक। यहोवा रामा, सौख्यदायक, निर्मलि पिंगलान सौख्य। यहोवा शम्मा, കൂടെയിരിക്കും നൽകുമേ ആവശ്യങ്ങൾ. हमारी परिस्थिति में मौजूद रहने वाले, कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले, अपनी आंखों की पुतली के समान संभालने वाले परमेश्वर, तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। मैं समय की कमी का स्किप कर रहा हूँ। पवित्र Now we are going to worship God. I will sing this song in Hindi and Malayalam. Written in Hindi, translated into Malayalam. First I will sing in Malayalam. So, how many people are Malayali here? Malayalis? परिशुद्धने, परिशुद्धने,
साल पहले सुना, वो मेरे छोटे भाई और इनके पिताजी और हमारे और ब्रदर सीवी मैथ्यू, इनके हमारे सबसे छोटे भाई थे ब्रदर सनी, वो भी प्रभु के पास है। उन्होंने ये गीत तब लिखा जब बहुत बीमार थे। बाइबल कॉलेज में वो टीचर थे, लेकिन सब लोग फील्ड में सेवा के लिए गए थे, तो कोई मदद करने के लिए पास में नहीं था। तो रोज सुबह वो गिटार लेके बाइबल के वर्सेस पढ़ते हुए उसमें से गीत बनाते थे। लेकिन उस दिन गिटार उठाने की भी ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन उसने बोला ये सही समय है कि मुझे परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि हर समय मैं यहोवा को धन्य करूंगा। और ये अच्छा समय है। मैंने ताकत में तो बहुत स्तुति की, अब ये कमजोरी में मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। और उन्होंने उठाया, और जैसे हम मलयाली लोग हैं रक्तम जय वो रक्तम जय बोलते रहे, और उन्होंने एक गीत गाते गाते एकदम चंगे हो गए। पिछले 6-7 दिन से जो बीमारी बुखार नहीं जा रहा था, उसी गीत के साथ वो ठीक हो गए। और पहले कमजोरी से शुरू किया, फिर ताकत से परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। तो जितने कमजोर है वो हाथ उठाएं। कमजोर वीक ओके, अभी गाते गाते आपको ताकत मिलनी चाहिए। हालेलुया। रक्तम जय, 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 उछल के बोलना है, यीशु मसीह आपका चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो फिर आपको ताकत की भी घटी नहीं होनी चाहिए। बोल तो रहे लेकिन उछल नहीं रहे। कमजोरी में उछलिए, ताकत में बदल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लाखों लोग थे जिमखाने में, वो जब उछलते थे तो ऐसा लगता था कि समुद्र की लहर दूर से दिखाई दे रही है। रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है।
विशेष तौर से तेरी हुजूरी के लिए। वास्तव में तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा वास करता है। हम तेरी उपस्थिति के आनंद से भरपूर हैं प्रभु। तो इन सब जितने यहाँ खड़े हैं, भाई बहन बुजुर्ग, उन सब की हालात को तू जानता है। इस समय जो सोच रहे हैं, जैसे मेरी बात को वो सुन रहे हैं, वैसे तू उनकी सोच को, उनके विचार को सुन रहा है। तो उनकी परिस्थिति से भली भांति परिचित है। तेरे जाने बगैर कोई भी परिस्थिति इनके जीवन में आई नहीं, और जो भी परिस्थिति इस समय उनके जीवन में मौजूद है, उसमें तेरा सामर्थी हाथ इनकी भलाई के लिए, इनकी अच्छाई के लिए, इनकी उन्नति के लिए काम कर रहा है। और इस बात को हम विश्वास से कहते हैं, और हमारे विश्वास को तो सुन रहा है, तुम्हारे गाने को नहीं, हमारे विश्वास को सुनना चाहता है। और जब सूबेदार के विश्वास को तूने सुना, देखा, तो इसके लिए तू खुद आश्चर्यचकित हुआ और उसको भी तूने आश्चर्यचकित कर दिया। आज इनके विश्वास से तू अचंभित हो, आश्चर्यचकित हो, और इनके जीवन में तेरा सामर्थी हाथ का काम इस रीति से प्रकट हो कि ये भी अचंभित हो जाए और इनको देखने वाले पड़ोसी, इनके कलीग भी अचंभित हो जाए। हालेलुया। सारी महिमा तुझे मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। You may be seated.